Yes, so after that logic, let's try to make a C program for bisection method. Bisection method. So whenever you start any C program, first, what is your first step? First, we will include some packages which we need. So mostly कौन से packages हम include करते हैं यहाँ पर? Include stdio.h, then include conio.h, and since we are dealing with a numerical method, so let's also include math.h. And these three packages would be sufficient. So this is very initial line. ये packages हमने include कर दिए. Now what is next step? Next step is we are finding root of an equation with the help of bisection method. तो वो जो equation है हमारा, राइट, वो तो हमें इसमें देना पड़ेगा C प्रोग्रामिंग में. तो C प्रोग्राम में जैसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं वैसे ही करेंगे. सो कौन सा फंक्शन इसमें यूज करेंगे? अभी हमने जो एग्जांपल लिया था x क्यूब minus x minus 11. Now how we can define a function in C language? चलो आप लोगों को तो C language अच्छे से पता है. Tell me, I need to define this function here. What should be my syntax and everything? Can anyone tell me? Umang, would you like to try? Umang, am I audible? Yes, sir. Umang, how I can define a function in C programming? सर पहले तो void main थी. नो, void main वो मेन फाइल बाद में लिखेंगे, उससे पहले हमको ये फंक्शन डिफाइन करना है. So what was the syntax for defining a function? सबसे पहले तो हमको फंक्शन का टाइप देना पड़ेगा, राइट? फ्लॉट है, डबल है या इंटीजर है. सो सिंस ये वैल्यू इंटीजर तो नहीं हो सकता, लेट्स कीप फ्लॉट. डबल फ्लॉट, ओके. फ्लॉट से हमारा काम हो जाएगा. अगर डबल की जरूरत पड़ेगी तो लेंगे. देन वी नीड टू गिव फंक्शन नेम. तो फंक्शन नेम एफ ही रखते हैं, राइट? लिखना बहुत इजी रहेगा फिर कोड में. देन जो भी इनपुट हम दे रहे हैं उसका भी हमको टाइप देना पड़ेगा. यहां पर हमारा इनपुट वेरिएबल है x, सो विल राइट हियर फ्लॉट x, right? And then we need to write what value this function is going to return. So what value will be returned by this function? We know that it is x cube minus x minus 11. So here we'll write return x cube. So I can write x star x. You can also write POW function, power x comma 3. That's also possible. Minus x minus 11. Then I need to write a semicolon here and bracket complete, right? So I have defined a function here. So now using this function, whenever I will call this function for any value, just let's say if I'm calling f of 2, it will directly give me -5, right? Because of this. तो function already हमने define कर दिया, जिससे हम लोग function value calculate कर पाएंगे. Now after that we can write void main. Let's start our main file. Yes, now in the main section, first we need to identify which variables we are going to use, right? वो variables कौन कौन से हैं वो हमको define करने पड़ेंगे. So जितना आप लोगों को bisection का logic पता है और जितना अभी हमने discuss किया, based on that, can anyone tell me how many variables we need? And also the type of variable, float चाहिए, integer चाहिए, किस type के variables हमको use करने पड़ेंगे? Can anyone tell me? See, this is programming plus mathematics. So you have to give me your inputs because the communication has to be two-way. मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे. That doesn't make any sense. सर हमें वेरिएबल a चाहिए होगा. Correct. b चाहिए होगा. a चाहिए होगा, b चाहिए होगा. Then xn चाहिए होगा. xn किसके लिए लिखेंगे? एवरेज निकालेंगे तो सर मिड पॉइंट के लिए ना. यस. हाँ, तो मिड पॉइंट के लिए xn ले सकते हो या फिर चलो c ले लेते हैं. फिर हमको तो क्या करना है कि लूप में वही वेरिएबल को दोबारा हम यूज करते रहेंगे, तो नए वेरिएबल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. वही वैल्यू हम लोग रिपीटेडली चेंज करते रहेंगे एबीसी की. सो स्टार्टिंग लोअर बाउंड, अपर बाउंड एंड मिड पॉइंट. चलो उसके लिए 3 वेरिएबल तो हो गए. और कुछ चाहिए हमें?
और एक F ले लेते हैं सर फाइनल आंसर के लिए। फाइनल आंसर के लिए एफ लेना है। अच्छा, इनके फंक्शन वैल्यू भी तो चाहिए होंगे ना, कि फंक्शन वैल्यू तो डायरेक्टली इससे कॉल कर लेंगे, उसको सेव करने की जरूरत नहीं है, ये करना पड़ेगा? क्या लगता है तुमको? चलो, टू नो बी ऑन आइडिया सेफ सर। साइड, इसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं एफ ए, एफ बी एंड एफ सी। ए की फंक्शन वैल्यू हम स्टोर करेंगे एफ ए में, बी की फंक्शन वैल्यू स्टोर करेंगे एफ बी में, सी की फंक्शन वैल्यू स्टोर करेंगे एफ सी में। चलो, ये 6 वेरिएबल तो हो गए। इसका टाइप क्या लेंगे हम लोग? ये सारे जो हैं दे आर नॉट ऑलवेज इंटीजर, सो विल टेक देम प्लॉट। इसके अलावा और कोई वेरिएबल चाहिए हमको? क्या लगता है? सी, एक चीज तो क्लियर है कि हमको या तो वाइल लूप यूज करना है या तो फोर लूप यूज करना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू परफॉर्म इटरेशन। यस, नंबर ऑफ इटरेशंस को काउंट करने के लिए काउंटर भी चाहिए होगा, राइट? तो काउंटर के लिए यूजुअली हम लोग क्या वेरिएबल प्रेफर करते हैं? आई, जे, आई गेस आई और जे मोस्टली यूज करते हैं हम फोर लूप में और वाइल लूप में काउंटर के लिए। और वो ऑलवेज किस टाइप का रहता है? इंटीजर टाइप। सो इंटीजर आई। चलो, ये भी एक कंफर्म हो गया कि हमको काउंटर के लिए आई चाहिए। इसके अलावा कोई और वैल्यू चाहिए क्या हमको? व्हाट डू यू थिंक? थिंक अबाउट इट। डू वी नीड एनी मोर वेरिएबल हियर? किसी को कुछ नहीं लग रहा कि अभी हमको कोई वेरिएबल नहीं चाहिए होगा इसके अलावा? नो आइडिया सर। ओके, चलो मुझे ये बताओ, आप लोग फोर लूप यूज करोगे, वाइल लूप यूज करोगे, इसमें काउंटर आई यूज करोगे, वो आपका फोर लूप या वाइल लूप जो भी आप यूज करोगे वो टर्मिनेट कब होगा? हमारे पास कोई टर्मिनेशन क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए ना, कि कब उसको स्टॉप करना है। I mean, if your while loop is performing iterations for you, then after how many iterations it needs to stop? तो वो A is कितने equal to B, iterations sir. A is equal to B? नहीं, look, हमारा जो रूट है ना वो तो हमको एक इस C की वैल्यू से मिलेगा, ये C धीरे धीरे हमारे रूट की ओर जाएगा। बट द थिंग इज, Oh. कितने इटरेशंस करने हैं वो हमको यूजर से लेना पड़ेगा। जो भी हमारा कोड रन करेगा यूजर, उससे हम पूछेंगे कि आपको कितने इटरेशंस परफॉर्म करने हैं, वेदर यू नीड टू परफॉर्म 10 इटरेशंस और 20 इटरेशंस और 100 इटरेशंस। तो जितने इटरेशंस हमको यूजर से प्रोवाइड किए जाएंगे उतने इटरेशन के लिए हम हमारा फोर लूप या वाइल लूप रन करेंगे, राइट? तो वो कितने इटरेशन करने हैं वो डेटा भी हम लोग यूजर से डिमांड करेंगे, तो उसको स्टोर करने के लिए भी तो वैल्यू चाहिए। और नंबर ऑफ इटरेशन ऑलवेज इंटीजर ही रहेगा, उसको स्टोर करने के लिए कोई ले लो, जैसे मैक्स आईटीआर, या जो भी, अगर इससे छोटा भी नाम कोई लेना है तो ले लो, जैसे आईटीआर कुछ भी। इसमें हम लोग क्या स्टोर करेंगे कि भी कितने इटरेशंस हमको परफॉर्म करने हैं वो हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, राइट? तो ये हमारा टर्मिनेशन क्राइटेरिया हो जाएगा। सो आई थिंक these many variables would be sufficient. अगर इसके अलावा कोई जरूरत पड़ी तो अलग से ऐड कर देंगे। So first let's define these variables. Let's take float. Then we have A, B, C, FA, FB, and FC. Then we have a semicolon. Then we have integer I. I को 1 से इनिशियलाइज भी कर देते हैं, and then comma. We have one more variable, let's say ITR. Right? So we have defined the variables now. अब हमको क्या करना है कि हमको इनपुट वैल्यू चाहिए। इनपुट में हमको 3 चीजें चाहिए फ्रॉम द यूजर। फर्स्ट वन, वैल्यू ऑफ ए, सेकंड वैल्यू ऑफ बी, एंड थर्ड वन मैक्सिमम इटरेशन जितने भी उसको परफॉर्म करने हैं। सो ऑब्वियसली वैल्यू हम कैसे लेंगे यूजर से? विद द हेल्प ऑफ printf एंड scanf. So I will write here printf, then enter the lower bound of interval, enter the lower bound a, then scanf. Lower bound a, it is having float type, so we'll write %f and it will stored in value a.
Then we'll ask for the second one. Let's use backslash n. Enter the upper bound b. Then we'll again save that value in b. And last we'll ask for, let's use backslash n, enter number of iterations. And we'll save that value with %d because it is having integer type. So we have to write %d, and that value will be stored in ITR. Right? So we need these three values from the user. We need lower bound A, upper bound B, and whatever number of iterations we need to perform. So these three things will ask from the user. So सर एक बार एक्सप्लेन कर दो ये हम ITR क्यों ले रहे हैं? ITR is the number of iteration which user needs to perform, right? पहले स्टेप में क्या होगा कि हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करके इंटरवल की लेंथ को हाफ करेंगे, एक इटरेशन परफॉर्म होगा, आपको कुछ रूट मिलेगा. आफ्टर सेकंड इटरेशन उसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ेगी. आफ्टर थर्ड इटरेशन उससे भी ज्यादा एक्यूरेट आपका रूट होता जाएगा. बट द थिंग इज, हम उसको स्टॉप कहां पर करेंगे हमारे सी प्रोग्राम में? अगर हम वाइल लूप लेके हमारे इटरेशंस रन करते हैं, उसको कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा 10 इटरेशन के बाद या 15 इटरेशन के बाद या 20 इटरेशन के बाद. तो कितने इटरेशन के बाद हमको रूट चाहिए या कितने इटरेशन के बाद स्टॉप करना है, वो हम लोग यूजर से पूछेंगे. यूजर हमको बताएगा कि 10 इटरेशंस परफॉर्म करने हैं या 11 करने हैं या 20 करने हैं, और वो वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे आईटीआर में. सो टिल दिस पॉइंट इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज देयर एनी डाउट till this point? No, sir. Okay. सिर्फ No, sir. okay, सिर्फ एक दो लोग आंसर देंगे वो नहीं चलेगा. चैट बॉक्स में सब लोग मुझे रिप्लाई दो. जितने भी लोग मीटिंग में प्रेजेंट है, आई नीड रिप्लाईज फ्रॉम एवरीवन. इज देयर एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? Because after this main logic comes. If this is clear to you, then we can go to main logic. Okay, good. Okay, so meanwhile, what we can do, I will erase this part, but if you, for your reference, if you want to note down this, you just quickly take a screenshot of this. लिखने में तो टाइम ज्यादा जाएगा. Just quickly take a screenshot of this, so you can use it for your reference. Because from next practical, you are going to make C program on your own. And just give me confirmation in the chat box once your screenshot is done, so we can go to next line now after that. Okay, good. So let's clear the screen. Yes, so we have got the values from user. Now, the main logic, you can do it in two ways. You can do it with the help of for loop also, and you can do it with the help of while loop also. Right? अभी इसमें while loop से करते हैं, आप चाहो तो for loop से भी कर सकते हो. You can try the other variations. So let's use while loop. While I is less than equal to ITR. Now, what do we suggest by this? We have already initialized the value of I with 1, and suppose the user is giving us ITR equal to 10. तो ITR में अगर 10 वैल्यू है, तो जब तक हमारा I जो है वो 10 नहीं हो जाता, तब तक ये लूप जो है वो रिपीट होता रहेगा. दैट मतलब कि यूजर को जितने इटरेशन परफॉर्म करने हैं वो इससे हो जाएंगे. देन नाउ द लॉजिक कम्स. सबसे पहले हमको फंक्शंस वैल्यू कैलकुलेट करने होंगे. तो एफ ए के लिए हम लोग क्या करेंगे? विल कैलकुलेट एफ ऑफ ए. इन एफ बी विल कैलकुलेट एफ ऑफ बी. देन सी के लिए हम लोग क्या करेंगे? सी इज गिवन बाय ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, एंड देन विल कैलकुलेट एफ सी विथ एफ ऑफ सी. So now we have the value of a,
वैल्यू ऑफ बी जो कि ऑलरेडी हमको यूजर से मिल चुकी है, वी हैव द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला, एंड वी हैव ऑल थ्री फंक्शंस वैल्यू एफ ए, एफ बी एंड एफ सी। देन अब इसके बाद क्या हुआ कि सी की वजह से दो सब इंटरवल बन गए, ए सी एंड सी बी। अब इन दोनों में से हमको एक इंटरवल रखना है और एक छोड़ देना है, और कौन सा रखना है, जिसके लिए मल्टीप्लीकेशन एफ ए इंटू एफ सी अगर नेगेटिव है तो ये वाला इंटरवल हमको रखना है, और एफ सी इंटू एफ बी अगर नेगेटिव है तो ये वाला इंटरवल रखना है। तो ये दोनों कंडीशंस चेक करनी है और दोनों में से कोई एक ही हम रखेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या लगता है क्या करना चाहिए? आइदर दिस और दैट, दोनों में से एक करना हो तो सी लैंग्वेज में सबसे सुटेबल चीज क्या है उसके लिए? इफ एंड एल्स। यस, वी विल यूज इफ एल्स हियर। सो आई विल राइट इफ, देन अगर ए सी लेना है तो मुझे क्या कंडीशन चेक करना है? एफ ए स्टार एफ सी इज नेगेटिव। देन तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ओरिजिनल इंटरवल क्या था हमारा? ए बी। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो नया इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा? ए सी। मतलब ए में तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना, चेंज किस में हो रहा है? अपर बाउंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पुराना वाला जो अपर बाउंड था बी, उसमें हम लोग ये नई वैल्यू को स्टोर कर देंगे। राइट, सी को हम लोग किस में स्टोर कर देंगे? बी में। तो यहां पर हम लोग ले लेंगे बी इक्वल टू सी। मतलब कि जो पुराना इंटरवल था वो चेंज होके अभी क्या हो जाएगा हमारा? ए सी, जो हमको चाहिए। देन एल्स, मतलब अगर एफ ए इंटू एफ सी अगर नेगेटिव नहीं होता तो ऑब्वियसली ये सेकंड पार्ट सेटिस्फाई होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में हमारा इंटरवल जो है ओरिजिनल ये था, और जो लेना हमको है वो है ये सी टू बी। मतलब अपर बाउंड में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज किस में हो रहा है? लोअर बाउंड में। मतलब ये सी को हम लोग किस में स्टोर कर देंगे? ए में। सो यहां पर हम लोग ले लेंगे ए इक्वल टू सी। दैट मीन्स वंस योर इफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, आपके पास या तो ए सी इंटरवल होगा या तो आपके पास सी बी इंटरवल होगा। राइट, तो एट द एंड ऑफ दिस लूप either it will be AC और CB, and then इसके बाद हम लोग काउंटर में एक वैल्यू बढ़ा देंगे i इक्वल टू i प्लस 1, या फिर आप i प्लस प्लस भी यूज कर सकते हो, that's totally fine, and then my while loop will get over. Now do you think this while loop will work perfectly fine? This will work correctly फॉर द लॉजिक ऑफ बाइसेक्शन? एक बार ठीक से सारे लाइन देख लीजिए कि आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है लॉजिकली? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज एफ ए एफ बी वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, सो कंडीशन वेरीफाई हो जाएगा। फिर आइदर बी इक्वल टू सी होगा या ए इक्वल टू सी होगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1। अगेन वाइल लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा, तब यहां पर वो नए सिरे से सारी वैल्यू कैलकुलेट करेगा। नई एफ ए की वैल्यू, नई एफ बी की वैल्यू, ये नया मिड पॉइंट, मतलब ये जो भी वैल्यू मिलेगा ए बी के लिए वो नई वैल्यू वापस से वो सी में रिप्लेस कर देगा, पुरानी वैल्यू को रिप्लेस करके। फिर नया एफ सी कैलकुलेट होगा और फिर से वही चीजें हम लोग चेक करेंगे। तो ये चीज रिपीट होती रहेगी जब तक आई लेस देन इक्वल टू आई टी आर है। तो लॉजिकली तो लग रहा है कि भाई हमारा लूप जो है दैट विल वर्क करेक्टली। एंड नाउ वी नीड टू फाइनली प्रिंट आवर आउटपुट। सो आउटपुट को कैसे प्रिंट करेंगे? आफ्टर दिस विल राइट प्रिंट एफ द रिक्वायर्ड रूट आफ्टर %d iterations is equal to %f, राइट। और पहले %d के जगह पर हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे? ITR, और ये %f के लिए हम लोग प्रिंट करवाएंगे C। तो जैसे अगर मान लो यूजर ने हमको 10 इटरेशन दिए थे तो ये क्या प्रिंट करेगा? द रिक्वायर्ड रूट आफ्टर 10th इटरेशन इज %f, मतलब वहां पर वो 10th इटरेशन के बाद जो भी C की वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल बी प्रिंटेड, and after that your main file will be over, right? So this is very basic and initial code for bisection method. हम लोग इसको और जनरलाइज और मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसको हम और भी ज्यादा अच्छा बनाएंगे, बट दिस इज द बेसिक कोड फॉर बाइसेक्शन मेथड for whatever number of iterations you want to perform, right? So again take a screenshot of this quickly
and tell me once your screenshot is done. Okay, thank you for the response. So now the time is about to finish. So now we'll take attendance. Now, what is your task before the next session? You have the screenshot of this basic bisection method. You try to type this code, compile it, and you get the output for any example which you have available in your theory book. Theory book में से कोई भी एक example लेके उसके लिए run करो, and you check your output, that whether your output is correct or not. Right? And next time, in the next session, what you need to do, first you will show me your output. जो भी आप लोगों ने प्रोग्राम रन किया है उसका आउटपुट आप लोग मुझे शो करोगे स्क्रीन शेयर करके. एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू मेक सम मॉडिफिकेशंस इन द बाइसेक्शन कोड. वो मॉडिफिकेशन क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी, ताकि जिन लोगों को आगे ट्राई करना हो खुद से वो लोग ट्राई कर पाए. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब तक तो सिर्फ हमने यही किया था कि नंबर ऑफ इटरेशन कितने करने हैं वही यूजर से पूछा था. अब हम इसमें एक और ऑप्शन ऐड करेंगे कि भाई रूट हमको कितना एक्यूरेट चाहिए, 2 डेसिमल एक्यूरेसी चाहिए, 3 डेसिमल एक्यूरेसी चाहिए. तो वो एक्यूरेसी को कैसे इसमें इन्वॉल्व करेंगे इस प्रोग्राम में, वो हम लोग सोचेंगे नेक्स्ट टाइम. एंड सेकंड थिंग, यहां पर हम लोग सिर्फ फाइनल वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं इस कोड में. राइट, हर एक इटरेशन में क्या वैल्यू मिल रहा है वो हम लोग प्रिंट नहीं कर रहे हैं. आप लोगों को सर ने एग्जांपल करवाया होगा टेबल यूज करके, जहां पर इटरेशन नंबर है, फिर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और फंक्शन वैल्यू. ऐसा एक टेबल आपने सर ने आपको करवाया होगा. तो उसी तरह के टेबल फॉर्म में हम लोग आउटपुट प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे. राइट, तो ये 2 चीजें हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम इसी कोड में. एक इसमें सेकंड कंडीशन ऐड करेंगे डिजायर्ड एक्यूरेसी के लिए, एंड विल ट्राई टू गेट द आउटपुट इन फॉर्म ऑफ टेबल. तो ये 2 चीजें ऐड करके हम इस कोड को और थोड़ा जनरलाइज करेंगे और थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करेंगे. राइट, सो दिस इज द बेसिक कोड. इतना आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए. इसमें ऑलरेडी लॉजिक आपका कवर हो गया है. अब जो मॉडिफिकेशन करने हैं दे आर नॉट दैट मच टफ. वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे. एंड वंस वी आर डन विद दैट, हम लोग उसके बाद सेकंड प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे. So let's quickly take attendance now. Let's stop recording here.